patient and steady with all he must bear, ready to meet every challenge with care, easy in manner yet solid as steel, strong in his faith, refreshing real. And he is none other than Mr. Srinivasa Rao. I take this opportunity to invite him on the stage to enlighten all of us with his precious notions. Please, sir. Honorable Srinivas Rao sir is one of the most renowned educationists of the area. He belongs to Guntur, Andhra Pradesh. He is MSc Chemistry, Amid Educational Administration from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. He completed his MBA in Human Resource Management. He started his career from New Digambar Public School as a PGT Chemistry. After that, he did not stop his academic journey and went on leading the area of Madhya Pradesh. He has been the principal of Choithram School Indore, Springwood Senior Secondary School Neemaj and Shri Kavardhara Public Higher Secondary School Mandleshwar. He joined Shri Kavardhara Public Higher Secondary School Mandleshwar in the 2013 as a Director of Academics and kept on leading and guiding the facilitators of the school in all the domains of education reached to the heights. It is now a trendsetter and a benchmarker institution. He is an innovative person. He is tenacious techno-savvy person. Honorable Sir, we ever wish for your guidance to have many more feathers in the cap of institution. Thank you so much, sir. Namaste, good evening everyone. Most awaited chief guest of the evening, the young entrepreneur, Mr. Siddharth, management chairperson, Ms. Pramodji Chajed, ma'am, Mrs. Jyoti Chajed, CEO Mr. Pranjal Chajed, revered principal Mr. Yogesh Joshi, and other dignitaries over here, the most important stakeholders of this event, my dear parents and lovely children. Indeed, I feel proud and privileged to be the part of Silver Jubilee celebrations of Sri Kavartara fraternity, especially Sri Kavartara Higher Secondary School. I don't want to give any certificate to this school because in any educational organization, the end product is the result of the child in various domains and in their lives, which you have already witnessed here, in the form of academic achievements, co-curricular activities, displaying various skills, and entertaining all of us. In all the domains, they were found to be outstanding, and I don't need to give any certificate.
we all are witnessing that. Breaking the boundaries of the language, I would like to discuss only 3 points specially pertaining to the parents. मैं हिंदी में कोशिश करूंगा ताकि जो 2-3 पॉइंट्स मेरे दिल से आपकी तरफ, आपके पास पहुंच जाएं। एक तो मैं वो 3 पॉइंट्स बताने के पहले मैं मैनेजमेंट को स्पेशली प्रमोद जी, छाजे जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक कोर टीचर था। I have teacher stuff in me, but I don't know that I could be an entrepreneur. I can establish an organization. I can run it effectively. It is all because of the inspiration of Mr. Pramod Ji Chhajed and the braveness of Mrs. Jyoti Chhajed. Believe me, she is of course a social worker. Maybe the reason that she has those guts. I'll tell you one example. जब कराई में सीबीएसई स्कूल एफिलिएशन की बात चल रही थी तो सर ने कहा कि सर छोटी सी जगह आप क्यों ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं। छाजट मैम ने कहा कोई परवाह नहीं सर, गो अहेड। आज ऐसी जगह पे ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कूल के नाम से एक बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहे हैं वो स्कूल। सो इस तरह की जो विजनरी मैनेजमेंट के साथ अभी 2 more prodigies in the name of Pranjal Chhajed and Pratinav Chhajed are also hopefully will contribute in this educational domain. मैं उनसे गुजारिश कर रहा था कि क्यों ना आप इंटरनेशनल करिकुलम का स्कूल खोला जाए। So hopefully they will take initiation in that direction. So dear parents, मैं आपके लिए 2-3 पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो वो हिंदी ड्रामा जो थी वो मेरे काम बहुत आसान कर दिया है। उसमें एक मदर कहती थी कि ये बच्चा सुनता नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी करके होता है। उसका मतलब ये है कि बच्चे को एजुकेशन की तरफ सही एटीट्यूड है कि नहीं। अपन कहते हैं ना, ए चाइल्ड शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। बच्चे को लर्निंग की तरफ क्या एटीट्यूड है। लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज टू बी टेकन इट एज, नॉट ए डिफिकल्ट एक्सरसाइज। लर्निंग एक हमें खेल कूद जैसा एंजॉयबल एक्सरसाइज जैसा मानना चाहिए, पर अपने बच्चे उसको चैलेंजिंग और डिफिकल्ट एक्सरसाइज मानते हैं। ये जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। और उनकी आदतें क्या है, उनकी बिलीव्स क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द हैबिट्स फॉर्म होते हैं। हैबिट कैसे फॉर्म होता है, कोई भी काम अगर रिपीटेडली करें, जैसा अभी आपने देखा मदर को कि हर दिन वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था, जो डिसऑर्डर इन ऑर्डर नहीं था, आउट ऑफ ऑर्डर था, फिर भी वो एक्सेप्ट कर रही थी, तो इस तरह से वो हैबिट बन गया था। जैसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि सर ये सुनता नहीं है, ये सुबह उठता नहीं है। ये एक मैनिफेस्टेशन है पेरेंट का। पेरेंट्स की मैनिफेस्टेशन को एड्रेस करना एजुकेशन इसका काम है। ये मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है जिसको एड्रेस करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप इनकी छोटी छोटी आदतों पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आदतें कैसे बदलते हैं, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, रिसेंटली रिलीज हुआ है, वो हो सके तो आप पढ़िएगा। उसमें ये कहा गया है कि आपको हैबिट बदल सकते हैं, बिल्कुल आपके बच्चों की हैबिट बदल सकते हैं। कैसे? छोटे छोटे, जैसे मान लो कि सुबह 5 बजे या मॉर्निंग उठता नहीं, उठने की आदत नहीं है, जबकि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होता है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट होता है, फिर भी वो उठता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो आप उनको कहिएगा कि 6 बजे उठिए, 6:30 की जगह 5 मिनट ही पढ़िए, फिर दूसरा दिन 10 मिनट पढ़ें, फिर अगले हफ्ते 15 मिनट पढ़ें। इस तरह से छोटी छोटी पार्ट्स में उनकी हैबिट्स बदल सकते हैं। दूसरी बात यह है
ये जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे कॉग्निटिव डिसोनेंस, दूसरी जो मैनिफेस्टेशन है पेरेंट्स का, मैं बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं इसको, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हैबिट्स के रिलेटेड, इमली आपको पता है और जंक फूड पता है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में एक कहावत है, मैं कोशिश करूँगा, इमली खाया और पेरेंट्स का कहना माना। मतलब ये चीज़ देखिएगा, बच्चा क्या करता है कि जनरली जो आदतें होते हैं, जो हैप्पीनेस के लिए दो आदतें, श्रेय और प्रेय करके दो हैबिट्स होते हैं। श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एफर्ट्स करना। प्रेय मतलब टेम्पररी प्लेजेंट के लिए। देखिए इमली बहुत अच्छी होती है, एक इमली खाने से 20 ऑरेंजेस की बराबर सी विटामिन मिलता है। और बगल में एक क्या होता है, जंक फूड, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है। आप बच्चों से पूछे इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली इमली को बगल में रखेंगे। लेकिन आपको ये बताना है, आपको ये आदत करवाना है कि ये अच्छी चीज़ें, ये बुरी चीज़ें, वो ध्यान में रखिएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आप आदतें बदल सकते हैं, बदलना चाहिए। नहीं तो आपने ड्रामा में देखा है एंड में क्या हुआ है, तो उसी तरह से होगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट मैं बता रहा था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है, आपने फॉक्स और ग्रेप्स का स्टोरी सुना होगा। वो फॉक्स ग्रेप्स के लिए जंप मारती है, कोशिश करती है काफ़ी, जब उनको मिलता नहीं है तो वो कहती है कि ठीक है रहने दो, नहीं मिला तो रहने दो, आई कुड नॉट जंप टू दैट हाइट, क्योंकि वो खट्टा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह के जो एटीट्यूड है उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, मतलब समझौता करना। देखिए आपने अपने बच्चों को कभी समझौता करने के लिए ना कहिएगा। उनकी जो एम है हमेशा हाई होना चाहिए। थिंक बिग एंड अचीव बिग। आपका बच्चे को कभी पूछते हैं तो वो कहता है क्या बनना चाहिए, डॉक्टर। अरे डॉक्टर बनने के बाद क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा। आपका बच्चा कहता है कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, बनने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं, मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर बनना है। उसके लिए उनकी लगातार कंटिन्यूअस लर्निंग होगी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा। मुझे द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बनना है, द बेस्ट इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड बनना है। ऐसी बड़े बड़े टारगेट्स बना रहें तो उनकी लर्निंग भी लगातार बना रहेगा और वो कभी जिंदगी में फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, खुश रहेगा। लास्ट मैनिफेस्टेशन है पेरेंट्स का, वो होता है एक कुछ ऐसे बच्चों की आदत होती है कि एग्ज़ाम्स दे के आने के बाद में वो कहता है कि बहुत सारे उनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं। इनको साइकोलॉजी के टर्म्स में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये इसका मतलब ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा हुआ, डिफ़िकल्ट पेपर था, और सेकंड टाइम भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि डैडी मैंने वो नहीं पढ़ा, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा था इसलिए कम आया। ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको। ये अकाउंटेबिलिटी से दूर जाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना, ऐसा ना होने दीजिएगा। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उनको 0 आया, 10 आया, 100 आउट ऑफ 100 आया, उसकी क्रेडिबिलिटी बच्चों को ही जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी बच्चों को ही लेना चाहिए। इस तरह से उनको करने से मुझे लगता है बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप जो भी चाहते हैं वो निश्चित रूप से वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़े अच्छे रूप से सोसाइटी के लिए, देश के लिए काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for this much awaited hear from you.